World AIDS Day, celebrating awareness again, letting you know it. Now prevent getting it. The virus is real. Play safe and you'll live. Show love and care to the victims who know you may need it. It can happen to you. Let's love, let's love life and live. It's no crime being a gift. Let's tell our children the truth. Caution them all for the world's good. Oh, parents, do your work. Juvenile delinquency is at work. Oh, youth, be strong and good. Leave romantic dream alone. AIDS Awareness Day. Thank you and have a nice day. Activities related to HIV, like awareness raising activities take place around the globe. People living with HIV make their voice heard on issues important to their lives. Serving and raising funds for groups of people living with HIV/AIDS. Events highlighting the current status of HIV. Many people wear red ribbons, the universal symbol of awareness of, support for, and solidarity with people living with HIV. The objectives of World AIDS Day is to increase awareness about AIDS, its impact on lives of infected people, and stigma and discrimination, improve quality of life of people living with HIV/AIDS. About HIV/AIDS, HIV stands for Human Immunodeficiency Virus, which is the retrovirus that causes HIV infection. The AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome, is the most advanced stage of HIV/AIDS. Human immunodeficiency is an infection that attacks the body's immune system, specifically the white blood cells called CD4 cells. HIV destroys the CD4 cells, weakening a person's immunity against opportunistic infections such as tuberculosis, fungal infections, bacterial infections, and some cancers like Kaposi sarcoma. HIV transmission of HIV virus to the people, especially eligible couples, by using different images, videos, etc. Explain how to use condoms properly. Every time during intercourse, the individual should use condoms separately. Educate pregnant women about impact of HIV on a baby during delivery and breastfeeding. Nurses also explain about screening for pregnant mother at least twice during pregnancy. Motivate not to have multiple sex partners. Provide information about testing services for early HIV detection. Nurses also monitor for any psychosocial need patient may have. Many patients and family need ongoing counseling services to help cope with diagnosis because some patients even experience the 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, sadness, and acceptance. Educate about ART, antiretroviral therapy, to people's, patients, and families, its benefits, and improve in immune status. Organizing and participating in awareness campaigns, blood safety, and standard precautions. At last, I would like to end my speech with a message. In the eyes of AIDS, everyone is equal. Any of us could get it. Exclude AIDS, not the people living with it. Thank you. And their loved ones, and hope to battle bravely through it. The red ribbon is the universal symbol of awareness and support for people living with HIV. For further knowledge, I would like to invite Shweta on stage. स्वामी बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की छात्रा यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय एवं पूजनीय गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ एवं मेरी सीनियर्स, मेरी साथी और मेरी दोस्त एवं मेरी प्यारी जूनियर्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में मैं भाषण द्वारा प्रकाश डालना चाहूँगी। विश्व एड्स दिवस सन 1988 यानी कि 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से होने वाली एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में इस बीमारी से प्रभावित लोगों का समर्थन करना है। इस दिन का मकसद यह तय करना है कि
एड्स से प्रभावित लोग कलंक और भेदभाव के बिना समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें, और साथ ही इनके साथ होने वाले छुआछूत के भेदभाव को खत्म करना है। विश्व एड्स दिवस HIV एड्स से निपटने के लिए दुनिया भर में होने वाली पहल और भी मजबूत बनाने का एक अच्छा मौका होता है। इस दिन का मकसद नई दवाइयों के साथ उपचार में होने वाले सुधार के लिए समर्थन जुटाना है और यह तय करना है कि HIV एड्स से प्रभावित सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचाया जा सके। क्या है एड्स? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह HIV इन्फेक्शन का आखिरी चरण होता है। यह वायरस शारीरिक संबंध बनाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन इसके संक्रमण के और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी और पर इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन का प्रयोग, माँ से बच्चे को जन्म के समय या ब्रेस्ट फीड कराने पे। समय पर HIV संक्रमण का पता ना लगने की वजह से एड्स हो सकता है। हालांकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों की मदद से इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह वायरस इम्यून सिस्टम के T लिम्फोसाइट सेल्स पर हमला करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है और अन्य दूसरी बीमारियों से बचाव करना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे HIV एड्स के चरण के बारे में। HIV वायरस के संक्रमण के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण HIV एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण नज़र आते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज क्लिनिकल लेटेंसी का होता है। इस चरण में आमतौर पर कोई लक्षण नज़र नहीं आते और कई सालों तक ये स्टेज रह सकता है। इसके बाद आखिरी स्टेज होता है एड्स। क्या है HIV के लक्षण? कमज़ोरी होना, बुखार आना, अधिक पसीना आना, ठंड लगना, रैशेस, लिम्फ नोड्स में सूजन, शरीर में दर्द, थकावट, डायरिया, मुंह में छाले, उल्टी एवं वजन कम होना। एड्स रोग कैसे फैलता है? HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, HIV संक्रमित सिरिंज व सुई का दूसरे के द्वारा प्रयोग करने से, HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद, HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से। आइए बात करते हैं एड्स से बचाव से। अपने रिश्ते के प्रति रहें वफादार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। खुद को शिक्षित और जागरूक बनाओ। एड्स की बीमारी से पूरे परिवार को बचाओ। यौन संपर्क के समय निरोध यानी कॉन्डम का प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज एवं सुई का प्रयोग ना करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को भी यह बीमारी हो सकती है। सुरक्षा से काम कीजिएगा, सुरक्षित जीवन का आनंद लीजिएगा। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति से रक्त ना लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया हुआ रक्त भी ग्रहण करें। एड्स निम्न तरीकों से नहीं फैलता है। न साथ रहने से ना ही छूने से फैलती है। दोस्तों, न साथ रहने से न छूने से फैलती है। यह बीमारी सिर्फ असावधानी से फैलती है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ सामान्य संबंधों से, जैसे हाथ मिलाना, एक साथ भोजन करने से, एक ही घड़े का पानी पीने से, एक ही बिस्तर और कपड़ों का प्रयोग, एक ही कमरे में अथवा घर में रहने से, एक ही शौचालय और स्नान घर का प्रयोग कर लेने से यह रोग नहीं फैलता है। यह रोग मच्छरों और फटमलों के काटने से भी नहीं फैलता है। अब इसकी बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की, यानी अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है या अन्य माध्यमों से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो HIV एड्स के लिए जरूरी टेस्ट और इसका निदान कर सकते हैं। अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो वह ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करा सकते हैं। हालांकि असुरक्षित सेक्स के बाद 48 से 72 घंटों के भीतर इलाज शुरू कर सकते हैं। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का कोर्स बहुत ज़्यादा असर करता है।
और आपको HIV संक्रमण के खिलाफ की रक्षा करने की संभावना और बेहतर हो जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस HIV की दवाइयाँ हैं जो आमतौर पर 28 दिनों की अवधि के लिए दी जाती हैं। PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की सलाह उन लोगों को अधिक दी जाती है जो सेक्स वर्कर्स, समलैंगिक और अन्य उच्च जोखिम वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब अगर बात करें वर्ल्ड एड्स डे थीम 2023 की, तो WHO द्वारा इस वर्ष वर्ल्ड एड्स डे की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दे रखी गई है। HIV के साथ रहने वाले और प्रभावित समुदाय, प्रमुख आबादी के लोगों और युवा नेताओं का नेटवर्क HIV प्रतिक्रिया में प्रगति के लिए आवश्यक रहा है और आज भी आवश्यक है। ये आवश्यक रोकथाम, परीक्षण, उपचार, सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं, विश्वास बनाते हैं, नवीन समाधान उत्पन्न करते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं और प्रदाताओं को जवाबदेह बनाते हैं। समुदायों के नेतृत्व से दुनिया एड्स को खत्म कर सकती है। यही कारण है कि इस वर्ष एड्स दिवस की थीम समुदायों को नेतृत्व करने दे रखी गई है और समुदायों की उपलब्धियों के जश्न से कई अधिक समुदाय के इस अमूल्य योगदान का जश्न मनाने को और उसे मान्यता देने को मनाता है। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। एड्स पीड़ितों का हौसला बढ़ाएं, एड्स पीड़ितों का हौसला बढ़ाएं, इस बीमारी से पीड़ित को उपचार बताएं, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपका कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। समय रहते जान लो इसको, समय रहते जान लो इसको, ये बीमारी लाइलाज है, बचाव ही रोकथाम है, HIV एड्स इसका नाम है, बचाव ही रोकथाम है, HIV एड्स इसका नाम है। इम्यून सिस्टम खत्म करके यह शरीर में फैल जाता है, इम्यून सिस्टम खत्म करके यह शरीर में फैल जाता है, फिर धीरे धीरे करके यह अपना असर दिखाता है, फिर धीरे धीरे करके यह अपना असर दिखाता है। ना कोई दवाई है इसकी, यह मौत की नींद सुलाता है, कुछ बातें बताना ज़रूरी है जिससे बनी यह पूरी जंजीर है, कुछ बातें बताना ज़रूरी है जिससे बनी यह पूरी जंजीर है। कुछ एक अफवाह है, कई बातें बड़ी गंभीर है, कुछ एक अफवाह है, कई बातें बड़ी गंभीर है। ना हाथ मिलाने से फैले, ना साथ खाना खाने से फैले, ना हाथ मिलाने से फैले, ना साथ खाना खाने से फैले, ना फैले साथ रहने से, ना फैले किसी के कहने से, ना फैले साथ रहने से, ना फैले किसी के कहने से। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित माँ के दूध से, संक्रमित खून, नीडल्स और संक्रमित ड्रग के डोज में धारण है, संक्रमित खून, नीडल्स और संक्रमित ड्रग के डोज में धारण है। HIV एड्स फैलने के यह 5 मुख्य कारण हैं, HIV एड्स फैलने के यह 5 मुख्य कारण हैं। वायरस से सुरक्षा के लिए कुछ बातें ध्यान में लाएं, वायरस से सुरक्षा के लिए कुछ बातें ध्यान में लाएं। खून और नीडल्स इस्तेमाल करने से पहले एक बार जांच जरूर कराएं, खून व नीडल्स इस्तेमाल करने से पहले एक बार जांच जरूर कराएं। अंत में मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगी। संक्रमितों से ना करें भेदभाव, संक्रमितों से ना करें भेदभाव, छूने से ना फैले ये, समाज को सुरक्षित बनाना है, HIV एड्स को हराना है। ना फैलता है वो स्पर्श से, ना ही हाथ मिलाने से, ये बस एक बीमारी है जो खत्म होगी हमारे जागरूक हो जाने से। धन्यवाद।